Namaskar, my all dear student of class 10. I'm your English mentor to help you in completion of the revision for upcoming board examination. Compact course series is going on. We have completed chapter number 1 from our main course book, First Flight. In this video, I'll take chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It's an autobiographical account written himself by Nelson Mandela. We'll see value points, highlight of this chapter, including some context-based question, some short question, and I will give you word meanings and summary that you can go through yourself. तो चलो स्टार्ट करते हैं. नेल्सन मंडेला, some information about him. Nelson Mandela was a great hero who gave freedom to the blacks in South Africa. He was born on 18 July 1918 in the village of Mvezo Umtata, then a part of the South Africa's Cape Province. He fought against the apartheid regime of South Africa, which believed in racialism. He spent more than 30 years in South Africa's prison. He became the first black president of South Africa when his party came to power in democratic elections in 1994. This passage forms a part of the autobiography of Nelson Mandela titled Long Walk to Freedom. It is a saga of glorious struggle that the blacks of South Africa waged against the apartheid regime to gain freedom. So this was some information. उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? उमटाटा में, मवेजो एक छोटा सा गांव था, वहाँ हुआ था. उसके बाद वो साउथ अफ्रीका की एक प्रोविंस में आ गए थे. नेल्सन मंडेला को मेनली जाना जाता है अपार्थाइड मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. दैट वाज मेनली एम टू गिव freedom, independence and their own rights to black peoples in their own country, South Africa, right? South Africa was captured by the white persons, but after coming in the democracy, Nelson Mandela became first the president, black president of South Africa. और उसके बाद जब उनके हाथ में पावर आ गई, इलेक्शन हुए थे 1994 में जिसमें वो इलेक्ट हुए थे, और उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस अपार्थाइड मूवमेंट. एंड आफ्टर हिज elections, after his oath as a black president, then the condition of black in South Africa and their own country started polishing. ठीक है, उसके बाद अच्छी होने लगी उनकी हालत. और ये जो उन्होंने बुक लिखी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. एंड दिस पार्ट दिस चैप्टर इज एन लिटिल पार्ट फ्रॉम दैट बुक. उसी बुक से छोटा सा पार्ट लिया गया है. ये इसमें क्या बताया गया है, इसमें सागा बोल सकते हो, अ स्टोरी और अ टेल, जो उन्होंने स्ट्रगल किया ब्लैक्स को साउथ अफ्रीका में उनका राइट्स दिलाने के लिए अगेंस्ट द अपार्थाइड रिजिम. विजिट आप बोल सकते हो, अंडरटेक. उन्होंने उनके लिए किस तरह से उनके हक, जो उनका राइट्स था उसको दिलाने के लिए जो स्ट्रगल लड़ा, उसके बारे में बताया गया है. रिजीम आप बोल सकते हो द एम्पायर, द एस्टेट. ठीक है, स्टेट जो पूरी अपार्थाइड स्टेट थी उसके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल किया था. तो वही यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है. अब इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दिस चैप्टर. This chapter has been taken from Nelson Mandela's book of the same name, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. It provides us a glimpse of the early life of Nelson Mandela. इसमें थोड़ा सा पार्ट बताया गया है मंडेला की अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन, 30 years in prison and the pains he had suffered in his young age. The chapter recounts his fight for the freedom for his own people who were tortured by whites. तो क्या क्या बताया है इसमें नेल्सन मंडेला की पूरी जितनी भी स्ट्रगल्ड लाइफ थी, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, हिज एजुकेशन, उसके बाद हाउ ही वॉज देयर इन द प्रिजन फॉर 30 years, उनके यंग एज में उन्होंने क्या क्या सफ़र किया, ये सारी चीज़ें रिकाउंट्स इज कॉल्ड डिस्क्राइब्स. उनकी जो फाइटिंग की जो फ्रीडम फाइटिंग की जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें अच्छे से दिया गया है कि कैसे वो और उनके जैसे जो और लोग थे वो वाइट्स के हाथों टॉर्चर्ड किए जाते थे उनके खुद की कंट्री में. In the chapter, Mandela gives two contradictory pictures of his own country, one in which the blacks were tortured and suffered quietly, and second, the black will be free to live the life of their own.
दो अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी कॉल अपोजिट पिक्चर दिए कि एक तो हम ये मान लें कि यही हमारी डेस्टिनी है, द ब्लैक विल ऑलवेज बी अंडर द रिजीम ऑफ वाइट्स पीपल, वो उनके अंडर रहेंगे, उनके ऑर्डर में काम करेंगे, जो वो बोलेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि दे टेक वन स्टैंड, ठीक है, अगेंस्ट देम वाइट फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए लड़ें, वो अपने राइट्स के लिए लड़ें। तो ये दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं। एंड व्हाट ही हैज़ चूजन, ही हैड चूजन द सेकेंड वे दैट हैज़ बीन गिवन। ही हैज़ स्ट्रगल थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ फॉर द ब्लैक पीपल। अब कैरेक्टर्स देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है नेल्सन मंडेला, ऑब्वियसली first black president of South Africa who fought for the equal rights of the black. He suffered a lot of pain for the freedom. Next है इसमें जिनानी, जो उनकी डॉटर हैं, Nelson Mandela's daughter who accompanied Mandela in his inauguration day. She was very much close to him. उनसे बहुत ज़्यादा close थे नेल्सन मंडेला. Now, Thabo Mbeki, first deputy president of South Africa who was very close to Mandela. तो ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे थाबो म्बेकी, जो मंडेला के काफ़ी क्लोज थे. नाउ मिस्टर डेक्लर्क, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये मेन कैरेक्टर हैं. ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, तो मंडेला ने अपने अलावा काफ़ी लोगों के बारे में बताया है. ऐसा कोई इनका बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पे भी जिक्र आया है वो यहाँ पे उस हिसाब से दिए गए हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं द चैप्टर. फर्स्ट इज द इनॉग्रेशन. द चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इन small paragraphs in which all the value points are included. At the end I'll give you some highlights. You can just take a quick look on those highlights and your entire chapter will be in your hand. तो सबसे पहले इनॉग्रेशन देखते हैं, कहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है. It was 10th May, the day of the oath, with bright and shiny sun. कौन सा डे है? 10th May का डे है. Shiny and bright sun. The day was really quite bright and shine. Nelson Mandela was supposed to take oath as the first black president of South Africa. Oath आप बोल सकते हो जो शपथ लेते हैं, ठीक है, pledge जिसको बोला जाता है, वो लेने वाले थे उस दिन. A large number of the leaders all from around the world had gathered there to be the witness of the swearing in ceremony of Nelson Mandela as the first black president. बहुत सारे लोग थे, लार्ज नंबर ऑफ द लीडर्स, अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे लोग आए हुए थे, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उस दिन उनकी स्वेयरिंग सेरेमनी थी. स्वेयरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेज या ओथ सेरेमनी थी. उसको विटनेस करने के लिए कि भाई साउथ अफ्रीका में पहला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है, उसको विटनेस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे लीडर्स आए थे. The inauguration ceremony took place in a big open building in Pretoria. Now Pretoria is the capital of South Africa, right? तो ये कैपिटल है साउथ अफ्रीका की. इसकी एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे ही इनकी ओथ सेरेमनी होनी थी. The inauguration ceremony took place there where the first democratic non-racial government was to be installed. यहाँ पे non-racial governments क्या बताया गया है? Racial means when you are assessing a person or judging a person on the base of their appearance, कि ये white people हैं, ये black people हैं, तो ये non-racial government वहाँ पे elect हुई थी. Non-racial government means first black president, first black, one of the black person from the South African natives, जितने भी लोग थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका लोग जो होते हैं वो बहुत ब्लैकिश इन अपीयरेंस, उनका जो स्किन टोन होता है काफ़ी ब्लैक होता है, तो इस तरह के लोग अलाउ नहीं थे टू गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स द रिजीम. बट ये स्टेप लिया था नेल्सन मंडेला ने, और उसके बाद ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जो 10th मई को 1994 को मीन्स ही वॉज अबाउट टू टेक द ओथ. द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला. अब एक्चुअल सेरेमनी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है नेल्सन मंडेला की. नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर ज़िनानी. Mr. de Klerk
was the first person who took oath as second deputy president, followed by Mr. Thabo Mbeki, who swore as the first deputy president of South Africa. Nelson Mandela was the last person who swore at the first black president of South Africa. He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the people. He also promised to make the nation free from poverty, deprivation, suffering and all sort of डिस्क्रिमिनेशन. तो जिस दिन स्वेरिंग सेरेमनी थी, नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर के साथ आए थे, जिनानी, वो उनके साथ थी उस दिन 10 मई को. तो सबसे पहले डेक्लार्क जो थे उन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली. उसके बाद मिस्टर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने मेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उसकी शपथ ली. अपनी शपथ में नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि मैं ओबे करूँगा हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन में वट एवर इज़ रिटन, जो हमारे राइट्स हैं, जितने भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनको ओबे करूँगा. एंड वो अपने आप को डिवोट करेंगे, बिल्कुल डिवोट करेंगे किसमें? वेलबींग ऑफ द पीपल, फॉर सर्विंग द पीपल ऑफ द नेशन, उसमें अपने आप को डिवोट करेंगे. उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपने नेशन को पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्राइवेशन यानी कि जो भी चीज़ की कमी है, ठीक है, वेंट या लैक ऑफ, उससे उनको दूर करेंगे. जितनी भी प्रॉब्लम है, ट्रबल है, लोगों की सफरिंग्स हैं, उनको दूर करेंगे. हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यू आर मेकिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल, जब आप भेदभाव करते हो, उस चीज़ को दूर करेंगे. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी स्वेरिंग सेरेमनी में कही थी, जो 10 मई को हुआ था प्रिटोरिया में. डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका जेट्स. अब जो मिलिट्री पावर का डिस्प्ले था वो अफ्रीकन जेट से हुआ था, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. When Mandela had taken oath, South African jets displayed the military power. It also showed the loyalty of military to democracy. The highest military general saluted him. He recounted that they would have arrested him many years before. अभी जो साउथ अफ्रीका जेट्स का डिस्प्ले होता है, यू मस्ट हैव सीन, आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे पे और ये हमारे रिपब्लिक डे पे बहुत सारे जेट्स का डिस्प्ले किया जाता है विद द कलरफुल, दे आर मेकिंग डिफरेंट शेप्स इन द स्काई, फ्लाइंग हियर एंड देयर, दे आर शोइंग स्टंट एज वेल इन द स्काई. वो सारा डिस्प्ले वो किस चीज़ को शो करता है? वहाँ की पावर को शो करता है, मिलिट्री पावर को शो करता है. एंड इसके अलावा लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री, डेमोक्रेसी, इसको शो किया जाता है. तो उनकी सेरेमनियल जो हुआ था ओथ सेरेमनियल, उसके बाद ये जेट का डिस्प्ले भी हुआ था. और इसके बाद जो हाईएस्ट जनरल थे मिलिट्री के, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया. नेल्सन मंडेला इस चीज़ को याद करते हैं, रिकाउंट इज कॉल्ड रिमेंबर्ड. ही रिमेंबर्ड दिस किंग. उनको याद आता है कि कैसे यही वो जनरल थे जिन्होंने थोड़े समय पहले उनको अरेस्ट किया था. वो 30 ईयर्स प्रिजन में रहे थे, राइट. तो आर्मी के जो बहुत बड़े जनरल थे, उन्होंने ही नेल्सन मंडेला को जेल में डाला था, अरेस्ट किया था. और आज उन्हीं में से जो जनरल थे, जो इतने हायर ऑफिशियल थे, वही उनको सल्यूट कर रहे थे. इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स. The white sang Nakaso Sikalil and the old song, and the black sang Dar Stem, the new song. तो 2 तरह के नेशनल एंथम गाए गए थे, दैट वर मार्क्ड एट द एंड ऑफ द सेरेमनी. जब सेरेमनी खत्म होने वाली थी, तब ये 2 नेशनल एंथम गाए गए थे. जो वाइट पीपल थे, उन्होंने नकोसी सिकैलल, ये ओल्ड सॉन्ग था वहाँ का साउथ अफ्रीका नेशनल एंथम, वो गाया. और उसके बाद जो ब्लैक है, उन्होंने गाया था डायर स्टैम एज अ न्यू सॉन्ग, जिससे पता चल गया कि हाँ, अब जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट या जो भी डिस्क्रिमिनेशन था इन बिटवीन ऑफ दैट इज कम्प्लीटली finished. ठीक है, both are allowed, both will be the part of the nation, both would be treated without any discrimination. ये सारी चीज़ें इसमें symbolize की गई थी इसके national anthem में. Apartheid and South Africa. Now this is the moment that about which the information has given. Apartheid moment की दिया गया है इसमें information. I, Nelson Mandela, reminiscence about days gone by which soon be the part of the history where the whites had formed a system of racial dominance against the black. Reminiscences is called remembers या recollect. ठीक है, वो
ये याद कर रहे हैं, वो क्या याद कर रहे हैं, जो दिन चले गए हैं, वो दिन उनको याद आ रहे हैं जब वाइट किस तरह से उन्होंने रेशियल डोमिनेंस शुरू किया था. डोमिनेंस इज कॉल्ड टॉर्चर. जब आप किसी पे डोमिनेट करते हो, अपने ऑर्डर्स चलाते हो, यू आर ट्रीटिंग दैम एज अ स्लेव. तो यहाँ पे वाइट लोग थे, वो ब्लैक पीपल को एज अ स्लेव ट्रीट करते थे, उनको एकदम नौकर समझते थे अपना, कि वट एवर दे विल सिस्टमाइज्ड वो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे. इस तरह का एक सिस्टम बना लिया था उन्होंने, और इसके खिलाफ किसी का भी लीड नहीं था, कोई भी अभी स्टैंड किसी ने भी नहीं लिया था. ये काफ़ी टाइम पहले की हिस्ट्री की जो बात है, जिससे जहाँ से ये अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुआ था. ठीक है, तो दिस वाज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटी विच इज़ नाउ ओवरटर्न्ड. तो ये हार्श सोसाइटी, हार्श आप बोल सकते हो रफ, वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा क्रूअल सोसाइटी थी, जो कि अब ओवरटर्न हो गई थी आफ्टर becoming the president by Nelson Mandela. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला has captured the presidentialship of South Africa. तो ये जो कंडीशन थी अब ये ओवरटर्न हो गई थी. He says that the policy of apartheid created a deep lasting wound on his country and its people. उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी लागू की गई थी अपार्थेड की, अपार्थेड इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल डोमिनेंस, इसकी जो पॉलिसी लागू की गई थी उससे बहुत डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट हो गए हैं उनके हार्ट पे, उनके पीपल पे, उनके नेशन पे. मतलब जब आपको कोई इस तरह से ट्रीट करेगा, आपको अपने ही कंट्री में एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाएगा, मीन्स यू वर ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड अगैन एंड अगैन, तो ये चीज़ें बहुत टाइम तक रहती हैं, नहीं जाती हैं. तो वो यही कह रहे हैं कि एक तरह से घाव हैं, बहुत गहरे घाव हैं जो उनको दिए गए हैं इस मूवमेंट के थ्रू, उनको और उनकी कंट्री को और उनके पीपल को, जो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बहुत ज़्यादा लास्टिंग है, मतलब हमेशा ये बने रहेंगे. Now it is the system that recognized the rights and freedom of all the people. और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कहते हैं कि अब जो सिस्टम आया है उसमें हर व्यक्ति को पहचान मिलेगी, जो भी ब्लैक पीपल हैं, जो अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं, जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, now they will all gain that back. Regret of Mandela and remembrance of freedom fighter. Now यहाँ पे मंडेला का रिग्रेट बताया गया है, उनको किस चीज़ का पछतावा है, फ्रीडम फाइटर्स को वो कैसे याद करते हैं. On the auspicious day of Mandela regretted the loss of thousands of the people and remembered their sacrifices for the freedom फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. ऑस्पिशियस आप बोल सकते हो होली डे, ठीक है, प्योर डे, होली डे, पवित्र डे. तो जब उनका सेरेमोनियल था, जब ये आपका ओथ सेरेमनी था, जब उन्होंने शपथ ली थी, उस दिन वो याद करते हैं कि कैसे बहुत सारे हज़ारों लोग थे जिन्होंने अपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने आप को और अपने लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से हटाने के लिए, मतलब उन लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया. He thought of himself as the sum of those African patriots who sacrificed their lives before him. He was pained that he couldn't thank them. वो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं, अपने आप को एक सम मान रहे हैं कि जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए लगा दी, वो एक तरह से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब उनका जो छोड़ा हुआ काम है वो कौन कर रहा है, नेल्सन मंडेला कर रहे हैं इन हिज प्रेसिडेंशियलशिप. लेकिन अभी उनको एक पेन है, एक रिग्रेट क्या है कि वो उनको खुद थैंक यू नहीं बोल सकते. वाई? बिकॉज दोज पीपल वर ऑलरेडी डाइड. अब वो है ही नहीं तो वो किसको थैंक बोलेंगे, ये उनको रिग्रेट है. He recalled great freedom fighters like Oliver Tambos, Walter Sisulu, Chief Luthulu, then Yusuf Dawood, and who were the men of the uncommon courage, wisdom and generosity. वो इन सभी लोगों को याद कर रहे हैं, लुथीली, यूसुफ, दादू एंड ओलिवर टाम्बोस, वॉल्टर सिस्लू, बहुत सारे लोग थे, उसमें से कुछ नाम उन्होंने लिए हैं, काफ़ी लोग थे. और ये सारे कैसे थे, अनकॉमन करेज. दे आर नॉट हैविंग द जर्नल करेज, they were having एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल करेज थी, अनयूजुअल ब्रेवरी थी इनके पास, विजडम थी इनके पास, एंड एज वेल एज जनरोसिटी. इन सबको वो याद करते हैं. ही सेड दैट द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स बट इज इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल. उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका है वो, उसके पास बहुत मिनरल्स है. यहाँ से साउथ अफ्रीका इज़ द प्लेस जहाँ से बहुत सारे मिनरल्स जो है माइन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. यू मस्ट बी वेरी वेल नोन अबाउट दैट. बहुत सारे मिनरल्स हैं जो यहाँ से निकलते हैं साउथ अफ्रीका से, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. बट वो क्या कहते हैं कि यहाँ की असली जो रिच है, असली वेल्थ यहाँ के मिनरल्स नहीं है, यहाँ के जो वेल्थ है वो है यहाँ के ग्रेटेस्ट
पीपल, फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इसको फ्रीडम दिलाने में। तो ये उनके इस तरह के विचार थे वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। नाउ गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ अ मैन, अब वो क्या याद दिला रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद टू अ कॉमन मैन, हर आदमी को वो उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या ऐसी चीज़ है जो मैन को बताती है, यानी कि उसमें होना चाहिए एज अ मैन। द ऑथर सेज दैट बीइंग वाइट और ब्लैक इज नॉट द टोकन ऑफ योर गुडनेस और सुपीरियरिटी। उन्होंने कहा कि वाइट होना या ब्लैक होना, आई डोंट नो, इट्स डिसअपियर, सी इट्स अ मैजिक। चलो जिसमें जितने भी वर्ड हैं, आई डोंट नो, आई थिंक समथिंग इज देयर इन दिस स्लाइड, है ना, इस वजह से ये अपने आप गायब हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप मार्क कर लेना। व्हाइट और ब्लैक होना आपकी गुडनेस को शो नहीं करता है, सुपीरियरिटी को शो नहीं करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर्स, पीपल शुड लव वन अनदर विच कम्स विदाउट फोर्स एज इट इज नेचुरल। हेट करना कोई गायब, हेट करना चलो कोई बात नहीं, हेट करना कोई जन्म से नहीं सीखता है कि हम आए, जन्म से सबको सिर्फ लव करना आता है। लव का मतलब क्या होता है, हाउ द काइंड ऑफ बिहेवियर, द ट्रीटमेंट यू वांट योरसेल्फ एग्जैक्टली यू शुड गिव टू अदर। ये क्या है, दिस इज द लव, द रियल लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू आर गिविंग टू द अदर पर्सन। तो ये कोई हेट्रेड जो है वो जन्म से सीख के नहीं आता है, जन्म से सिखाया जाता है कि हाँ हमको उनसे हेट करना है, वो ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अदरवाइज जो लव है दैट इज नेचुरल, दैट कम्स विद द बर्थ ऑफ अ पर्सन, वो हमेशा आता है, अपने साथ आता है, ये एक नेचुरल चीज़ होती है। इट्स अ मैन्स एसेंशियल गुडनेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छाई जो एक आदमी में होनी चाहिए। A man has to perform duties to his family, community and country which he didn't see in his country before he pushed himself to the fight for the black. अब जब एक आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है, हम लोग सेल्फिश होते हैं कि हाँ वी हैव टू कंप्लीट द स्टडी, देन आई हैव टू डू माई स्टडी, आई हैव टू अर्न मनी फॉर मी, फॉर माई फैमिली, आई हैव टू जस्ट गो ऑन द पाथ ऑफ द सक्सेस। बट धीरे 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 जैसे आप उसी सोसाइटी में रहते हो, सम ऑफ द पीपल दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द अदर्स ट्रबल एज वेल। तो वो यही बता रहे हैं कि बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं जो आपको अपनी फैमिली, कम्युनिटी या कंट्री के लिए निभानी है। बट इससे पहले भी ये चीज़ है कि वो आप कब पहचानोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं उस फाइट में डालते हो, मतलब किसी दूसरे के लिए जब तक आप नहीं लड़ोगे, उन लोगों की प्रॉब्लम को आप नहीं समझ सकते। मतलब अपने लिए तो सब लड़ते हैं, अपने लिए सब कमाते हैं, अपने लिए अपनी फैमिली का, अपनी कमी सब ध्यान रखते हैं, बट एज अ कम्युनिटी पर्सन व्हेन यू रियलाइज द ट्रबल्स ऑफ द अदर पर्सन, दैन यू विल बी टोल्ड एज अ रियल पर्सन. A black man was punished if he tried to live like a human being and forced to live apart from his own people, so he was not allowed to perform his duties to his family. एक जो black people है, ये जो बता रहे हैं हिस्ट्री में जो अपार्थाइड सिस्टम लागू हुआ था, the kind of racial discrimination had been going on for so many years, उसमें क्या था कि जो ब्लैक पर्सन है उसको एक तरह से पनिश किया गया था कि भाई तुमको एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीना है, लेकिन वो फोर्सफुल जीना होगा. ही वॉज नॉट लिविंग विद द फ्रीडम, विद द इंडिपेंडेंस, और तुमको अपने लोगों से दूर होकर जीना होगा. ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अलाउड नहीं थे और अपनी फैमिली के लिए नहीं थे. तो ये चीज़ें बहुत पहले थी जो उन्होंने बताया. इसकी चीज़ को ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदमी की क्या ड्यूटी होनी चाहिए कॉमन मैन की, वो याद दिला रहे हैं नेल्सन मंडेला टू इट्स कंट्री पीपल. नाउ मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला. मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम का क्या मतलब है? As a kid, Mandela had different meaning for being free, as he wanted to run in the fields, he wanted to stay out at night. As he grew older, he just wanted to the freedom of livelihood for himself and his family. अच्छा, जब स्टार्टिंग में जब वो बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम का कुछ और मतलब था, जब वो यंग हुए कुछ और मतलब निकला, वो बताया गया है. जब वो छोटे थे तो वो बाहर खेलना, दौड़ना, घूमना, कभी भी आज़ाद रहना, वो फ्रीडम था. जब वो बड़े हुए वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अलग रहना चाहते थे, उनके लिए अर्न करना चाहते थे अपने अकॉर्डिंग, उनके लिए वो फ्रीडम था. बट सून ही रियलाइज्ड दैट सच फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूजन, एंड he realized that his brothers and sisters who looked like him were not free. So he joined African National Congress.
His hunger for freedom became great for the freedom of his people. He desired that everyone should be given the right to live his life with dignity and respect. He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated, as no one is free if one is taking someone else's freedom. And only such feelings can bring true freedom for everyone. जैसे ही वो बड़े हुए से मतलब जब उनकी फैमिली हो गई, उनकी कंप्लीट फैमिली, मतलब ही गॉट मैरिड, उनके फिर ही हैड द बेबीज़, उनके जब बेबीज़ भी हो गए, उसके बाद जब उन्होंने कम्युनिटी में धीरे धीरे जाना शुरू किया, उन्होंने जब देखा कि हाँ जो मेरे आसपास के लोग हैं दे आर इन ट्रबल, तब उन्होंने क्या किया, यस समबडी हैड टू टेक ए स्टेप, और उसको ध्यान में रखते हुए उनको लगा बिना डेमोक्रेसी में आए, बिना उस फील्ड में आए वो उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने क्या ज्वाइन किया था, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द पॉलिटिकल फील्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। उनके अकॉर्डिंग भी जो भी है, जिसका भी राइट है वो उसको मिलना चाहिए, हर आदमी को उसकी रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए। जो ऑप्रेसर है और ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड इज कॉल्ड, जो टॉर्चर करने वाला है और जो टॉर्चर सहने वाला है, दोनों को ही लिबरेट करना ज़रूरी है। सिर्फ टॉर्चर करने वाला ही गुनाहगार नहीं है। अगर आप सह रहे हो, अगर आप झेल रहे हो, इफ़ यू आर हाइडिंग समबडीज दिस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स यू आर ऑल्सो अ क्रिमिनल, यू आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दैट। तो दोनों को ही लिबरेट करना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरा, जैसे आप फ्री हो, ठीक है, यू आर लिबरेट, यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ लिबरेट, लेकिन आप दूसरे की अगर लिबरेशन छीनने की कोशिश कर रहे हो तो इन ट्रू मीनिंग यू बोथ आर नॉट लिबरेट। तो दूसरों की जो फ्रीडम छीनता है वो भी लिबरेट नहीं है। इस तरह की जो फीलिंग है वो कैसे आएगी, जब सभी को फ्रीडम मिलेगी। मीन्स सिर्फ सोसाइटी में कुछ लोग लिबरेट या फ्री होने से नहीं काम चलेगा, सबको फ्रीडम मिलेगी, तभी ये पूरा कंट्री यूनाइट हो सकता है और लिबरेट हो सकता है। अब देखते हैं चैप्टर की हाइलाइट्स। 10th of the May was a day of freedom for South Africa, and there was a huge gathering, international leaders and dignitaries. Inauguration ceremony of swearing. The ceremony was being held in Union Building in Pretoria, and the first non-racial government took the change. Nelson Mandela gave a speech on the victory for justice, peace, and human dignity. Mandela pledged to liberate his people from poverty, suffering, and discrimination. A colorful show by the jets and helicopters show the military's loyalty took place. Then singing of two national anthems was done. The old Nkosi Sikelel by the whites and the new Diastem by the blacks. ये दो नेशनल एंथम हुए थे. The new system that recognized the right and the freedom of all was formed. Mandela remembered and thanked the people who sacrificed their lives for the freedom. Salutation to some great freedom fighters: Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadu and others. इन सब के नाम उन्होंने अपनी स्पीच में लिए थे और इनको थैंक यू बोला था. Mandela said in his speech that a country is rich because of its people, not because of the minerals. Courage is not the absence of fear, but the victory over it. People should love others and not hate them due to the color or religion. Love comes naturally, not by force, which is the natural goodness for a person. He also stated that a man should try to make a balance between his duty towards his family, duty towards his community and country. A black person was treated badly and not allowed to perform his duties. According to Mandela, freedom has many aspects. Like for a kid, it is to be run and play. For an adult, it is to fulfill the needs of his own and his family. And real freedom means equal rights for everyone. Nelson Mandela joined African National Congress, and he desired people to live with the dignity and respect. He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated. Patience and perseverance, guided by the discipline and the system, yield the desired result. Perseverance आप बोल सकते हो persistent. Persistence आप बोल सकते हो बने रहना, मतलब
डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन आप बोल सकते हो। मतलब आप कोई भी अगर काम करोगे पेशेंस रख के करो, उसको कंटिन्यू करो, ठीक है, रोको नहीं, डिसिप्लिन में रह के करो, तो जो भी सिस्टम यील्ड करेगा, जो भी सिस्टम प्रोड्यूस करेगा, उससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट ही मिलेंगे। तो दीज ऑल वर द टीचिंग एंड प्रीचिंग दैट हैज़ बीन गिवन बाय नेल्सन मंडेला, ठीक है, वो बताया गया था। इन सब चीज़ों से हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं टू बी अ गुड सिटीजन। Extract based question. This is the first extract, first line taken from the text. 10th May dawn bright and clear. For the past few days one had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever the international leaders of South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been a seat of white supremacy, and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. First question from this, who were coming and for what before the inauguration? कौन कौन आ रहा था? तो हम बोल सकते हैं बहुत सारी डिग्निटरीज एंड लीडर्स आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। कौन सा इनॉग्रेशन? सेरेमोनियल इनॉग्रेशन। What happened on the inauguration? क्या क्या हुआ इनॉग्रेशन पे? इनॉग्रेशन पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उन्होंने अपनी स्पीच दी थी एंड डिफरेंट कलर्स के जो नेशन थे वो इंस्टॉल हुए थे। बहुत सारी जो डे था वो कौन सा था? 10th May था, एंड उस डे पे द स्पीच वॉज गिवन बाय द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सेकेंड डिप्टी, देन फर्स्ट डिप्टी, और उसके बाद जो मेन थे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, उनके द्वारा स्पीच दी गई थी। बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे जो अपनी ट्रिब्यूट पे करने आए थे, जो अपनी वी कैन से ना वेल विशेस देने आए थे नेल्सन मंडेला को। फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स द सेम कमेंसमेंट फ्रॉम द पैसेज। कमेंसमेंट का हमको एक देना है। कमेंसमेंट का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग, ओके। तो यहाँ पे कमेंसमेंट का जो वर्ड था वो था, आई हैव फाउंड समवेयर, inauguration. Now where this is the word inauguration and this is called commencement, right? Find out the word from the passage which means an open space surrounded by the sloping land. Open space, और जहाँ पे बैठने का भी होता है, audience are sitting on the sloping land is called, like in this manner, auditorium manner में जो बैठे होते हैं, that is called amphitheater, okay? Where is amphitheater is written? Let me see. Yes, sandstone amphitheater, okay? So this is the word for this. Now paragraph number 2 देखते हैं। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century, in my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and the freedom of all the peoples regardless of the color of their skin. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and cursing can never be counted or repaired. Now this is the text. Question, yes. What happened after Anglo-Boer War? Anglo-Boer War के बाद क्या हुआ था? After Anglo-Boer War, the white people of South Africa erected system of racial discrimination against the black people of their own land. Erected आप बोल सकते हो, constructed, ठीक है? तो white people ने क्या कर दिया था? White people ने racial discrimination construct कर दी, एक system बना दिया था कि black people हैं वो political field में नहीं आ सकते हैं, वो public places पे नहीं आ सकते हैं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी restrictions लगाती थी उनके खुद के country में, ठीक है? तो ये एक system बन गया था। Next question, on what basis the structure of a new government created? New government was created as the recognition of the rights and freedoms of all the people regardless of the color of their skin. Next is pick the word in the passage which had the same meaning as submerged. Submerged का मतलब overwhelmed, मतलब बहुत ज़्यादा over emotional हो जाना,
that is called overwhelmed, where it is written overwhelmed. Let's find out. Overturned and overwhelmed. That means submerged. Submerged का मतलब ऐसे हो जाता है डूब जाना, लेकिन यहाँ पे इस वर्ड से कैसे कनेक्ट कर पा रहा है? डूब जाना मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा चले जाना, एंड दैट कैन बी सीन बाय द अदर पर्सन, राइट? What is the meaning of the phrase to patch up the differences? अच्छा, ये यहाँ पे फ्रेज का मीनिंग पूछा है, वर्ड नहीं पूछा है, ठीक है? तो मीनिंग हमको अपने आप लिखना है. पैचअप मतलब सुधार लेना, डिफरेंसेस मतलब जो भी डिफरेंस है, जो भी डिस्टिंक्टनेस है हम लोगों के बीच में, तो आप बोल सकते हो टू सेटल सम डिस्प्यूट्स, ठीक है? जो हम लोगों में फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ अलग चीज़ें हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको पैचअप करना. शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखते हैं. व्हाट फ्रीडम मेंट टू मंडेला इन चाइल्डहुड? During childhood, the meaning of freedom for Mandela was quite limited. He considered it to be free to run in the fields, to swim in the clear stream, free to roast maize and ride the broad back of the slow-moving bulls. क्या क्या करते थे वो अपने बचपन में? वो भागते थे, दौड़ते थे पूरे फील्ड में, स्विम करते थे वाटर स्ट्रीम में. स्ट्रीम इज कॉल्ड छोटी सी जो पानी की धारा होती है, दैट इज स्ट्रीम. एंड फ्री टू रोस्ट मेलीज. रोस्ट इज कॉल्ड कुक्ड, ठीक है? मेलीज आप बोल सकते हो मेज, ठीक है? मेज जो होता है, जो सीरियल होते हैं, ठीक है? सीरियल्स जितने भी होते हैं, सीरियल्स या आप बोल सकते हो ग्रेन, ठीक है? ग्रेन होते हैं. वैसे ये मक्का जो भुनी हुई, रोस्ट की हुई जो मक्का होती है, उसके बारे में बोला गया है. तो वो खाते थे. और ब्रॉड बैक ऑफ बुल, बुल होते थे जो बड़े बड़े बैल होते थे, उनकी पीठ पर बैठ के सवारी किया करते. तो उनके लिए फ्रीडम का ये मतलब था. Why did inauguration ceremony take place in the amphitheater formed by the Union Building of Pretoria? क्यों हुई थी एम्फीथिएटर ऑफ प्रिटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग थी वहां पर? It was the first democratic non-racial government taking oath in South Africa, and the ceremony was attended by dignitaries from more than 140 countries around the world and thousands of the people of South Africa of all the races to make the day memorable. So it took place in the amphitheater formed by the Union Building of Pretoria. बहुत बड़ा है ये एम्फीथिएटर ऑफ प्रिटोरिया. उनको पता था भाई 140 देश के कितने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक लीडर्स आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका के एक जो नेटिव था वहाँ का, वो सब इनवाइटेड थे. तो इसलिए इस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो सेरेमनियल थी वो कहाँ पे की गई थी? एम्फीथिएटर ऑफ प्रिटोरिया. What did Mandela think of oppressor and oppressed? Mandela always thought that both oppressor and oppressed are deprived of their humanity. उनके अकॉर्डिंग डिप्राइव्ड मतलब उनमें नहीं होती है, वो उससे खाली होते हैं, लैक होते हैं, दे आर एम्प्टी, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि ऑपरेसर और जो ऑपरेसर है और ऑपरेस्ड है, दोनों में ही क्या नहीं है? एंड दोनों में ही क्या नहीं है? दोनों में ही ह्यूमैनिटी नहीं है, एक दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते. ऑपरेसर इज अ प्रिजनर और हेट्रेड, while oppressed has no confidence in humanity, so both of them need to be liberated. जो ऑपरेसर होते हैं वो प्रिजनर होते हैं ऑफ हेट्रेड, लोगों से नफरत के बल पर. मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई उनकी पर्सनल किसी तरह की रिवेंज लेना है, उसको कोई दुश्मनी है, नहीं. सिर्फ हेट करते हैं, सिर्फ किसी कुछ वजहों से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, और वो उस वजह से उनसे हेट करते हैं, उन पे ऑपरेश करते हैं, उन पे टॉर्चर करते हैं. और जो ऑपरेस्ड होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि दे कैन टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दैम. तो दोनों को ही लिबरेट करना ज़रूरी है. इनको बताना ज़रूरी है कि सिर्फ हेट के बेस पे आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और इनको बताना ज़रूरी है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यू शुड रेज अगेंस्ट दैट. Describe the effect of the policy of apartheid on the people of South Africa. The policy of apartheid could not be considered fortunate for the people of South Africa. It created distance and a deep wound in the country and the people. Many great men like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Yusuf Dadoo and Bram Fisher, etc. were produced due to the brutality and oppression. They were man of great character. इन सभी लोगों ने अपार्थाइड मूवमेंट के अगेंस्ट अपना वॉइस रेज किया, काम किया, एक्शन दिखाया, और इन्होंने क्या फेस किया? इन्होंने ब्रुटैलिटी भी फेस की. ब्रुटैलिटी इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो, टॉर्चर. बहुत ज़्यादा जो टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, ह्यूमैनिटी एज अ इनह्यूमन आप बोल सकते हो, इनह्यूमन बिहेवियर, वो उन्होंने बर्दाश्त किया.
लेट मी राइट फर्स्ट, उन्होंने वो बर्दाश्त किया और ये सेक्रीफाइस किया ऑपरेशन अगेन, वो बहुत ज़्यादा सप्रेस किए गए। और ये जो थे बहुत बड़े जो मैन ऑफ द कैरेक्टर, ग्रेट विजडम, ग्रेट जेनरोसिटी, जो बताया गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। What did Mandela realize about his brother and sisters? He realized that his brother and sisters were not free in their own country due to their color. The freedom of everyone in his society was curtailed, and he joined the African National Congress and fought for the फ्रीडम। यहाँ पे जो ब्रदर और सिस्टर बोला जा रहा है ये सबके लिए वो बोल रहे हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको लगा कि हाँ वो लोग जो कम्युनिटी में रहने वाले हैं वो फ्री नहीं हैं, उन पर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, उनके जितने भी राइट्स हैं वो कर्टेल्ड कर दिए गए हैं। कर्टेल्ड का मतलब आप बोल सकते हो लेसन, या कम कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा काट दिए गए हैं, मतलब उनको बहुत चीज़ों से अलग रखा गया है, डिप्राइव किया गया है, जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं बिना पॉलिटिक्स में आए हुए ये काम नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेप ही हैड टेकन टू कम इन द पॉलिटिक्स बाय जॉइनिंग द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिससे कि वो फ्रीडम के लिए लड़ाई कर सकें। Because till this time he was very well known कि this is the thing that you need power. जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी यू कैन नॉट डू एनीथिंग बीइंग जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए, उनको उनकी फ्रीडम दिलाने के लिए उनका पार्टी में आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, ये फर्स्ट स्टेप था नेल्सन मंडेला का जो उन्होंने यहाँ पर लिया था। वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के, एंड मेनी ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आर देयर, यू हैव टू गो थ्रू दैट। बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, just go through that, and after that I have given the summary. After reading all these word meaning and summary, the chapter will be really well strengthened in your mind, बहुत अच्छे से आ जाएगा without any confusion, सारे confusion आपके clear हो जाएंगे। You will be able to sort out any kind of abstract based question even without not going through the text। आपने text नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी आप कर लोगे जितने भी context based questions होते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो 1 मार्क के होते हैं ना, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग्स पूछा जाता है, ये आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। ओके, सो डोंट स्किप एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर।